and they were going to take control of their defense. And when you're talking of outdoor activities, so they were purely linked with the men, and the women, they were supposed to take part in domestic affairs. And in colonial perspective, as such, there is a no, you can say you are going to support the patriarchy, and there was a no much literacy rate. And overall, there was a such fear that was going to be propagated that if a woman they are going to come out of their home, they were going to be targeted for sexual violence or something like that. So as such, in a colonial perspective, there's a clear-cut division that this is a breadwinner role, this is a homemaker role. Breadwinner that was going to be purely linked with the men, and homemaker that is going purely linked with the women. When you're talking of a political opportunity, so again, political opportunities, they were more linked with men rather than women. Okay. And that was an overall clear-cut, you can say, demarcation of role in a colonial perspective. But still, there was some sort of exception. They were still existing. When you're talking of a men who belong to lower class, still they were performing their role, and you can say they were going to get more engaged in domestic affairs as well. Similarly, when you're talking of women who belong to lower classes, still exceptions were existing, and women who belong to lower classes, they were going to get more engaged in agricultural field as well in order to take care of their homes, because they were having no other source of income. Similarly, when you're talking of a women who belong to upper classes, they are going to take more part in political opportunities as well. So we can say in a colonial perspective, there was a clear-cut division of role. There's something that's specific for male and specific for female. नीलिमा सर, हम आपकी स्पीड को हैं, स्पीड ज्यादा है? अच्छा, आई एम सॉरी, चलें ठीक। ओके, तो हम कहते हैं कि जो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव था, उसमें जो वुमेन थी, ऑल्दो कि उनका रोल घर तक था, लेकिन उसमें एक्सेप्शंस एग्जिस्ट कर रही थी लोअर क्लास वुमेन में और अपर क्लास वुमेन में। ठीक है, कि जो लोअर क्लास की फीमेल्स थी वो अपने इसमें फायरवुड के लिए और सम अदर चीजों के लिए उनको नहीं नहीं इंजना करो साकिब साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी आंदी है। तो उसमें जो था, मैं आपको पता नहीं बता क्या रहा था, मुझे आपने बुलाई दी है। हम पढ़ क्या रहे थे वैसे? कॉलोनियल पर्सपेक्टिव भी पढ़ रहे थे ना? ओके, तो एक्सेप्शंस दे वर एग्जिस्टिंग इन अपर क्लास एज वेल एज इन लोअर क्लास। ठीक है, चले अब आ जाते हैं कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलिज्म? चले नीलमा, I'm going to unmute you and you have to explain what is capitalism. जी नीलमा, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, आपने एक्सेप्ट ही नहीं करनी। चलें, कैपिटलिज्म जो है, गेट रिचेस, सैयद ज़ीशान साहब, आई अप्रिशिएट दैट इज आउटकम दैट it is going to create a gap between haves and not. शाबाश। इकोनॉमिक सिस्टम characterized by private ownership and free market concept. एक्सीलेंट डॉक्टर साहब, ठीक है यार, आप तो बड़े अच्छे बच्चे बन गए हो सारे, आपको तो चीजें बहुत हद तक क्लियर हो गई हैं अब। ठीक है, so in other words, you can say when you're talking of capitalism, so concept of free market, laissez-faire principle, the state would act as a regulator and state is going to act as a supervisor, but as such, when you're talking of ownership, that would be just linked with the individuals, private individuals. What do you mean by private individual? For example, if Yasser want to establish an industry in his own name, Yasser can do it. And if Dr. Abdullah is going to establish 3 or 4 lavish hospitals, he can do it in his own name. And if Habib is going to import some cars and he's going to take ownership of those cars, he can do it. So basically, ownership is associated with the private individuals. Yes, you're right. Okay. तो क्योंकि जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म में आपका ओवरऑल 3 सिस्टम है ना, अपने इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और सोशलिज्म। तो कैपिटलिज्म में क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स के पास ओनरशिप होती है और उनका जो इंटरेस्ट होता है वो बेसिकली दे वांट टू हैव मोर रिटर्न। ऐसे ही है।
So capitalism may obviously you need to increase more your rate of return and you need to increase your production on the basis of which women they are going to be given more opportunity to be part of such system as well. So in a capitalistic perspective, women they were given access to public roles. Yes, that is just for the sake of profit maximization of upper class. Yes, you're right. Okay. तो जिसमें women को access तो मिल जाती है, but still women they are not free from certain challenges. So in capitalistic perspective, women they face different challenges. For example, in terms of acceptance of their role as administrator, in terms of their promotion, in terms of their wages, in terms of their maternity issues, and in terms of their protection of their dignity and protection of their life as well, because at the same time they were going to face some issues of harassment and they were going to be taken as a low worker. So issues they were different, but still they got some sort of independence as compared to colonial perspective. Is it clear? जी उमर साहब तुसी कुछ फरमाना चाह रहे हो? अच्छा उमर ने म्यूट कर लिया. ओके चलें, थैंक यू वेरी मच. Okay. When you're talking of a capitalistic perspective, so in capitalistic perspective, there are different theories. Here you're going to analyze in terms of gender analysis of development theories. That in capitalistic perspective, basically why individuals they have been given more, you can say, independence, and why ownership and factors of production, they are going to be taken by private individuals for the sake of development, for the sake of the progress of society. And when you're talking of the progress and development of the society, so basically there are various theories which are going to analyze the individual role. First of all, there's a modernization theory, then there's a dependence theory, world system theory, then there's a dependence theory, and last, there's a structural functionalism theory, okay? When you're talking of a modernization theory, what do you mean by modernization? जी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि उमर आप मॉडर्न बच्चे हैं तो आपका क्या आंसर? हम कहें कि आप बड़े मॉडर्नाइज्ड हैं, ये बड़ा मॉडर्नाइज्ड लड़का है, ये मॉडर्नाइज्ड लड़की है. व्हाट डज इट मीन? अप टू डेट. शाबाश. अप टू डेट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय अप टू डेट? ये हम कहें ये बड़ा एडवांस है, हम कहें कि ज़ाहरा बड़ी एडवांस है, तो इससे क्या मुराद लेते हैं आप? डिमांड ऑफ आवर. उबैद मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें. उबैद बुखारी. चेंज विद द चेंजिंग सिनेरियो. यार आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते. चले छोड़े, ना बोले. ओके, तो जब हम मॉडर्नाइज की बात करते हैं तो मॉडर्नाइज मीन्स rationalization, ठीक है, कि in term of liberal thinking means in term of flexibility. तो जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो वो इट मींस वो रैशनलाइजेशन की तरफ जाएंगे, लिबरल थिंकिंग की तरफ जाएंगे. स्टेजेस की हम बात करेंगे जिसकी दो स्टेजेस हैं, एक है इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज और दूसरी है पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज. जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब है कि मॉडर्न फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि पहले जो पब्लिक रोल था, पब्लिक रोल सिर्फ मेन के साथ एसोसिएटेड था, ठीक है. तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज आई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में वुमेन के जो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाना और वुमेन के रोल को एक्सेप्ट करना फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज. सेकंड इज अ पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज. पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में जिसमें आप लिबरल, यू आर गोइंग टू शो योर लिबरल थिंकिंग, यू आर गोइंग टू शो मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड यू आर गोइंग टू lose your rigidity in term of giving control over their lifestyles. ठीक है, lifestyles में कि आपने कौन सा occupation रखना है, आपने कौन सी dressing रखनी है, आपने कौन सा अपना getup maintain करना है, और how you are going to express yourself in society. That is a post industrialization phase. ठीक है, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज में ये आपके फॉर एग्जांपल ड्रेसिंग पैटर्न्स में चेंज आना, आपके ऑक्यूपेशंस में चेंज आना, ठीक है, एंड ऑल दिस, दैट इज अ पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज. इज इट क्लियर? What do you mean by stages of a modernization theory?
you very much, Sayyid Saab. Okay, the next is a process of a modernization. Okay, या modernization theory के अगर हम process की बात करें, तो जब हम इसकी प्रोसेस की बात करते हैं, व्हाट वुड बी योर आंसर, इसका प्रोसेस क्या होगा? तो हम कहते हैं कि जब इसकी प्रोसेस की अगर हम उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो हम कहते हैं कि इसका जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो चेंज आती है, वो चेंज आती है आपके जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें, ठीक है, उसमें अपडेशन होती है ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ लेक्चर थ्रू डिजिटल लर्निंग टेक्निक्स, ठीक है। फिजिकल आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें आएगी, और उसके बाद आपका जो सेकंड नंबर पे आ जाएगा इन टर्म ऑफ थिंकिंग, कि मॉडर्नाइजेशन इन टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, मॉडर्नाइजेशन इन टर्म ऑफ योर थिंकिंग प्रोसेस भी है, ठीक है। तो ये दो तरह के इसके प्रोसेस होते हैं, और ये हम वो वर्ड भी यूज करते हैं ना सोशियोलॉजी में कि मटेरियल चेंज और नॉन मटेरियल चेंज। मटेरियल चेंज में ये आ जाएगा कि आपका जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें चेंज, नॉन मटेरियल में आपकी थिंकिंग, आपके वैल्यूज, आपका कल्चर, कि वो उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। और जब दोनों चीजों में इम्बैलेंस होता है, मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर, तो उसके लिए एक टर्म यूज होती है कल्चरल लैग। बट राइट नो यू डोंट नीड टू बी मोर अवेयर ऑफ दिस टर्म। जी शाबाश, दैट इज अ कल्चरल लैग। ओके, तो अगर हम मॉडर्नाइजेशन की वो प्रोसेस की बात करें तो वो इस तरह से होगा। अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें, स्पेशली व्हेन यू टॉकिंग दैट हाउ मोर चेंज that is going to be carried out in your non-material culture in terms of your thinking, why you say you need to show more flexibility towards the roles of other individual, why you need to accept roles of other irrespective of his or her sex. So that which institutions can play a very important role. The first of all, you can say educational institution, they play a very important role, and the second institution that play a very important role, that is the media. Okay, तो इन इंस्टीट्यूशंस को उसमें ज्यादा रोल आपको नजर आता है। फिर अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें, तो हम कहते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है इसमें जो वेरियस एजेंसीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, वो बेसिकली दैट गोइंग टू गेट स्टार्टेड फ्रॉम फैमिली। कि सबसे पहले जो आपकी थिंकिंग है कि हाउ टू बिहेव, कि मेल का क्या रोल होगा, फीमेल का क्या रोल होगा, आपकी कौन सी अपॉर्चुनिटीज होंगी, सो यू आर गोइंग टू स्टार्ट ऑल यू नीड टू टेक स्टार्ट फ्रॉम फैमिली। ओके, स्टेजेस मेरे ख्याल मैंने एक्सप्लेन कर दी हुई है। नेक्स्ट अगर हम इसकी स्टेजेस की बात करें कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, कि मॉडर्नाइजेशन किस तरह से आती है, तो हम कहते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है इन टर्म ऑफ इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज, तो इंडिविजुअल्स के पास सबसे जो बेहतर अपॉर्चुनिटीज होती हैं इन टर्म ऑफ पैरिटी, दैट इज अ डेवलपमेंट स्टेज. So basically, you are going to divide into various stages: is underdeveloped stage and preconditions to take off stage, and take off stage, drive from maturity stage, and development stage. So when individuals they're going to face more inequality, that is under underdeveloped stage. And then to some extent, individuals, they're going to have a better facilities when they move from underdeveloped stage to precondition to takeoff stage. Things they get more better when they move to takeoff stage, and things they have more improvement when you move to drive to maturity stage. Finally, you are going to achieve a stage that is a development stage where all individuals, they are going to enjoy equal opportunity. श्योर क्यों हो रहा है? अच्छा नहीं हो सायरा रऊफ स्लो, अच्छा 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 यार, वो मुझे था कि चले ये आसान ही है, तो मैं तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड पकड़ रहा था। ये किसका माइक ऑन है तो किसी का भी नहीं। आ, साहब तनोली, नहीं साहब तनोली का माइक भी ऑफ है। चले, ओके। वैसे साहब तनोली ने पिक्चर में भी ना फोन कान के साथ लगाया हुआ, आई थिंक सो। एनीहो, तो हम कहाँ पे थे? चले यार, शाह साहब थोड़ा लेक्चर अच्छी रहा, बहुत। ओके, एनीहो, तो हम बेसिकली थे। ओके, जी बिल्कुल ऐसे ही है।
नहीं नहीं, हम बड़ा स्लो स्लो पढ़ेंगे, कोई स्पीड नहीं है, हम मारेंगे, ठीक है। तो अंडर डेवलप स्टेज क्या होती है? अगर हम अंडर डेवलप स्टेज की बात करें, अंडर डेवलप स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं, यार छोड़े उमर साहब, डोंट वरी, आप देखिए, आप आपस में मत लड़ाई करें। आई अप्रिशिएट उमर दैट if you can maintain that pace, लेकिन we have to take other students as well, ठीक है। तो we need to be more democratic, तो इसलिए हमें हर एक का जो ओपिनियन है उसको वेटेज देनी चाहिए और उसको we show respect, ठीक है। तो don't take it personal। चलें यार, देखिए हम जेंडर स्टडीज पढ़ते हैं, हम इक्वालिटी इक्वालिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करेंगे तो वो मॉडर्नाइजेशन किधर आएगी? मॉडर्नाइजेशन तो स्टार्ट ही टॉलरेशन से होती है, ठीक है। तो ये हमारी जो नॉन मटेरियल डेवलपमेंट है कि हम दूसरे को टॉलरेट नहीं करते। ओके, जो अंडर डेवलप स्टेज है, अंडर डेवलप स्टेज ये स्टेज होती है जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, अगर इंडिविजुअल्स अपने जो रोल हैं अगर वो परफॉर्म करते हैं through the dictations of institutions, so that is the underdeveloped stage, ठीक है। मसलन आपने ये लेक्चर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको यू हैव टू डू अ सीएसएस, दैट इज अ फैमिली रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप लोगों ने क्योंकि उसमें फी पे की हुई है तो इसलिए आपको लेक्चर लेना है, तो इसको हम कहेंगे अंडर डेवलप्ड स्टेज। जब इंडिविजुअल्स के पास ये डिसीजन नहीं होता कि वो अपनी मर्जी का डिसीजन ले सके, ठीक है। मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल फीमेल की ड्रेसिंग की बात करें या फीमेल की हैबिट्स की बात करें, उनकी हॉबीज की बात करें, उनके स्पोर्ट्स की बात करें, क्यों उनको वो जस्ट इंडोर एक्टिविटीज में प्ले करना पड़ता है? क्योंकि उनको फैमिली की रिस्ट्रिक्शन है, दैट इज अंडर डेवलप्ड स्टेज। जब आपके इंस्टीट्यूशंस दे बिकम डोमिनेंट इन शेपिंग योर रोल्स, देन इट वुड बी अंडर डेवलप्ड स्टेज। Individuals have no freedom to adopt any role up to their own choice. That is an underdeveloped stage. Is it clear? यार अनीस, आपने क्या occurrence, what do you mean by occurrence? चलिए इसको कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद हम आते हैं, ठीक है। ओके, सेकंड आ जाएगा प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ स्टेज। प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें इंडिविजुअल्स के पास थोड़ी सी फ्रीडम आ जाती है और इंस्टीट्यूशंस का रोल थोड़ा सा वीक हो जाता है, ठीक है। अब वो कैसे होगा कि फॉर एग्जांपल हम रहीला की बात कर लें, रहीला चांद की, ठीक है। कि जो रहीला है, अगर रहीला का सीएसएस हो जाएगा और रहीला जो है वो अपनी टॉप रेफरेंसेस में आ जाएगी, तो आपको लगेगा कि रहीला फिर भी रोटियां बनाएगी और रहीला जो है सुबह उठ के पहले अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाएगी, फिर उसको ऑफिस में फिक्र होगी कि हो मैंने अपने हस्बैंड को लंच नहीं अभी भेजा। डू यू थिंक सो? नॉट एट ऑल, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होने वाला। अब ये इसको हम कहते हैं प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ स्टेज, ठीक है। कि जब आपके पास, अच्छा आयशा, वैसे जेड़े कहते हैं ना सब बिल्कुल बनाना है ना, बिल्कुल नहीं बनाना, ठीक है। ये बिल्कुल इसकी आयशा की अपोजिट स्टेटमेंट है जिसकी पर्सनालिटी के। ओके, तो ये जो है प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ स्टेज, क्योंकि लास्ट टाइम आयशा जो है ना बड़ा गन्नों का जिक्र कर रही थी, तो ये साथ खाना लेके आएगी, साथ गन भी लेके आएगी कि जैसा भी बना है यू हैव टू टेक इट, अदरवाइज यू हैव टू टेक समथिंग एल्स। ओके, तो इसको हम कहते हैं प्री कंडीशन टू टेक ऑफ स्टेज, जिसमें दो फैक्टर्स आपको किसी हद तक इंडिपेंडेंस देते हैं। एक तो है कैपिटल और दूसरा है टेक्नोलॉजी। जब आपके पास पैसा आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके पास इंडिपेंडेंस भी आ जाती है, ठीक है। और आप अपने आप को थोड़ा सा फ्रीडम वो उसको गेन कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू वट एवर यू लाइक। तो ये जो स्टेज है जिसमें आपके पास पैसा आ जाए या टेक्नोलॉजी आ जाए जिसकी वजह से आपके रोल्स में फ्रीडम आ जाए, इट इज नोन एज अ प्री कंडीशन टू टेक ऑफ स्टेज। ओके, थर्ड स्टेज कौन सी होती है? टेक ऑफ स्टेज। टेक ऑफ स्टेज वो स्टेज है व्हेन यू मूव फ्रॉम एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम टू न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, देन यू गेट सम इंडिपेंडेंस and you feel yourself free in performing certain roles. This is known as a take off stage, ठीक है। और टेक ऑफ स्टेज की समझ आ गई? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम और व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम? एनीबॉडी प्लीज?
जी फवाद, आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं? फवाद इकबाल, आप अनम्यूट है ना? फवाद, आप एक्सप्लेन करेंगे? फवाद साहब, चले, फवाद लगता है बोलते ही नहीं है, चले, उसने साथ ही अनम्यूट कर दिया, सॉरी म्यूट कर दिया। ये मैं दोनों को कंफ्यूज क्यों हो जाता हूँ, म्यूट अनम्यूट को। एनीहो, शाबाश, एक्सलेंट। जब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करते हैं तो दैट इज एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम। जब आप न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की बात करते हैं तो वो पेरेंट्स विद 1 or 2 चाइल्ड। अच्छा, आप में से कोई एक्सप्लेन करे कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में इंडिविजुअल के पास क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं है? बाय द वे, व्हाट व्हाट वुड बी द रीजन? ओके, हम कहते हैं कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपके पास बेसिकली देयर इज नो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखें ना कि अगर आप 10 बंदे भी हैं तो उसमें से जो सबसे बड़ा है, कि फॉर एग्जाम्पल वो फादर है या वो आपका ग्रैंड फादर है, उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप कुछ कमाते हैं या नहीं कमाते, एक बंदा कमाता है, 20 बंदे खाते हैं, दैट इज अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो जो कमाता होगा बात भी तो उसी की चलेगी ना, या ओवरऑल जो फैमिली में बड़ा होगा, जिसकी वजह से आपके पास फ्रीडम नहीं होती। ठीक है? when you move from extended family system to individual family system, nuclear family system, जिसमें इंडिविजुअलिज्म आ जाता है, इंडिविजुअलिज्म में आप में सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अच्छा, वैसे बाय द वे, जब मैं म्यूट कर आपको अनम्यूट करता हूं तो आप होते नहीं है, अपने आप खुद हो जाते हैं, इसकी क्या लॉजिक है? ओके, तो मैं आपको क्या कह रहा था, ये भी हम क्या पढ़ रहे थे? न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम शायद बता रहा था आपको। ओके, तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में जो है उसमें आपके पास जो है वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, सर्वाइवल की बात आ जाती है। यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर ओन, अदरवाइज बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडेंट मोर ऑन अदर्स। तो जब उसमें वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली बात आ जाती है तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू डाइवर्सिफाई योर रोल इन ऑर्डर टू जनरेट मोर इनकम, इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर मीन्स, और ऑटोमेटिकली आपके जो रोल्स हैं वो डाइवर्सिफाई हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो आ जाएगा, ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज। ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज वो स्टेज होती है व्हेन यू मूव टुवर्ड्स इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम। जिस तरह एक कंट्री है वो दूसरे पे डिपेंड करेगा, और जब आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम का, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बनते हैं, क्यों? बिकॉज यू वांना इंक्रीज योर प्रोडक्शन, यू वांना इंक्रीज योर मार्केट, एंड यू वांना इंक्रीज योर कंजम्पशन वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है? ओके, तो जब आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग की तरफ आते हैं, आपका मार्केट साइज जो है दैट बिकम्स ग्रेटर, जिसके लिए आपको ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत होती है, और प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए यू नीड मोर लेबर पावर, और जिसकी वजह से आप इंडिविजुअल्स को जो है वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं, और ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल्स के पास इंडिपेंडेंस आ जाएगी। लास्ट स्टेज वो होती है दैट इज अ डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज वो स्टेज होती है, इसमें देयर इज अ मोर पैरिटी हियर इन डेवलपमेंट स्टेज, और इसमें ऑल इंडिविजुअल दे प्रेफर टू लिव in urban areas and they have equal access to education, health and many other facilities as well, and that is the urban stage। ठीक है, कि जिसमें आप जो है वो अर्बन लाइफ को प्रिफर करते हो, और इसमें देयर इज अ मोर लिटरेसी रेट एज वेल। सो बेसिकली आप कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो इनइक्वालिटी है दैट इज इन अंडर डेवलप्ड स्टेज, उसके बाद प्री कंडीशन, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, और उसके बाद इसमें। क्लियर? दैट इज अ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का मीनिंग क्या है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के स्टेजेस क्या है, उसका प्रोसेस क्या, इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, और उसके फेजेस कौन कौन से होते हैं मॉडर्नाइजेशन में। दैट्स ऑल अबाउट दिस। अनीस, अक्रंस की बात ये है कि ये जो लिबरलाइजेशन है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी इन योर थिंकिंग है, दैट इज गोइंग टू गेट स्टार्टेड फ्रॉम योर फैमिली। कि बेसिकली तो आप अपनी फैमिली से लर्न करते हैं ना कि व्हाट इज द रोल फॉर मेल, व्हाट इज द रोल फॉर फीमेल, एंड अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू अप्लाई हियर। सो दैट, जी शोर इज कमिंग, ये शोर कमिंग मेरा ख्याल है शहरोज से आ रहा था, तो उसको हमने बंद कर दिया। ही वाज एट दैट टाइम
ओके, इज इट क्लियर? चलिए, मेरे ख्याल आपके शोर की वजह से होस्ट ने मुझे भी म्यूट ही कर दिया था। नो क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, सेकंड जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी वर्ड सिस्टम थ्योरी। ठीक, ये आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आपने पढ़ा होगा। तो जब आप वर्ड सिस्टम थ्योरी की बात करते हैं तो वर्ड सिस्टम थ्योरी के ओवरऑल वर्ड को आप किस तरह से लिंक करते हैं? तो मोस्टली आप उनको डिवाइड करते हैं कोर कंट्रीज, पेरिफेरल कंट्रीज और सेमी पेरिफेरल कंट्रीज। कोर कंट्रीज कौन से कंट्रीज होते हैं बाय द वे? मोहम्मद यासर, यस सर, चले मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, शाबाश, आई अप्रिशिएट यस सर। सर आवाज आ रही है? जी जनाब, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। Sir, this theory was propounded by Emanuel Waston, and this theory established a three-level hierarchical structure consist of core countries as well as semi-periphery countries and periphery countries. According to this theory, core countries are those countries which are highly developed, and specifically the capitalist countries, like we can take the example of US, France, and UK. They are highly industrialized. They are economically and militarily powerful country as they have control over the world economic market as well. और उसका जो फोकस होता है स्पेसिफिकली देयर फोकस और ऑन higher scale and as well as a capital intensive production. So sir, they are highly industrialized, so they exploit the semi-periphery and as well as periphery countries. The semi-periphery and periphery countries provide them with raw material as well as with cheap labor. तो सेकंड सर आता है एंड देयर गवर्नमेंट इज ऑलवेज वेरी एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी एंड एज वेल एज सेंट्रल एंड स्ट्रांग गवर्नमेंट उसके होते हैं। सर इसके बाद हमारे पास आता है सेमी पेरिफेरी कंट्रीज। It is a kind of buffer zone between the two, between the periphery and the core countries. Sir, इसमें वो होता है कि their government is better than that of the periphery countries' government, and they are militarily and economically better than the periphery, but less than the core countries. और इसमें जो होता है इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, लेकिन इट इज नॉट दैट मच developed like the core countries. So they are exploiting for raw materials the semi periphery countries for as well as for cheap labors. और ये countries जो है semi periphery core countries are exploiting them. तो इसी तरह सर जो लास्ट होते हैं हमारे पास periphery countries है. Periphery countries are like the poor countries. We can take the example of Pakistan, Afghanistan, Nepal, etc., Sri Lanka. They are only providing the raw material because they do not have their own industries, or their government is not efficient. They are very weak economies. तो ये countries है, they provide materials for the semi peripheries, raw material and as well as cheap labor to the core countries as well. और वो core countries में जो finished product होते हैं इसकी ही materials, raw materials, they are again selling back to these countries. तो इसी तरह एक unequal structure सर मतलब के बनाया गया है ये theory. This theory deals with such a kind of things. Thank you very much, yes sir, I really appreciate for your deep analysis. So fantastic. Okay. ओके, अगर हम बात करें कोर कंट्रीज की तो कोर कंट्रीज मींस फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। अब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कौन से होते हैं या डेवलप कंट्रीज कौन से होते हैं? जिनकी इकोनॉमी बेहतर होती है, ठीक है, जिनके मिलिट्री स्ट्रेंथ बेहतर होती है। इकोनॉमी क्यों बेहतर होती है? क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी उनके पास होती है। टेक्नोलॉजी होने से क्या होगा? उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से क्या होगा? उनका जो मार्जिनल प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा। मार्जिनल प्रॉफिट ज्यादा होने से क्या होगा? उनकी ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ है वो ज्यादा होगी। जीडीपी ग्रोथ का क्या मतलब है? कि दे कैन स्पेंड ऑन एजुकेशन, दे कैन स्पेंड ऑन हेल्थ, दे कैन स्पेंड ऑन अदर services as well. So they are they are going to show more concern for the welfare of individuals. जब वो इंडिविजुअल्स पे वेलफेयर करेंगे तो इंडिविजुअल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और देयर वुड बी मोर लिटरेसी रेट। जब लिटरेसी रेट ज्यादा होगा तो देयर वुड बी रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जब होगा तो ऑल इंडिविजुअल्स दे वुड बी टेकन इक्वल अपॉर्चुनिटी। जब इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी तो दैट वुड बी जेंडर पैरिटी। इज इट क्लियर व्हाट डू यू मीन बाय कोर कंट्रीज? ओके, थैंक यू वेरी मच।
फिर आ जाते हैं सेमी पेरिफेरल कंट्रीज। पेरिफेरल कंट्रीज अपोजिट ऑफ कोर कंट्रीज, क्योंकि इनके पास प्रोडक्शन जो है वो ऑब्वियसली दे आर रिलाइंग मोर ऑन रॉ मटेरियल, उसके एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे होते हैं। और वो बेसिकली जो है, क्योंकि दे आर इनएफिशिएंट इन टेक्नोलॉजी एंड दे आर लैकिंग इन वैल्यू एडिशन, रिजल्टेंटली देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, उस ट्रेड डेफिसिट होने की वजह से दे, बिकॉज दे आर रिलाइंग मोर ऑन इंपोर्ट रादर देन एक्सपोर्ट, जिसकी वजह से उनका करंट अकाउंट डेफिसिट भी चलता है। तो जब उनका ये सारी इकोनॉमिक इश्यूज आ जाएंगे तो इट मींस दे वुड बी हैविंग स्लो ग्रोथ रेट। ठीक है, उनका जीडीपी इतना अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल वेलफेयर पे स्पेंड नहीं करेंगे। जब इंडिविजुअल वेलफेयर पे स्पेंड नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली एजुकेशन इज गोइंग टू मोर कॉम्प्रोमाइज्ड, जिस तरह पाकिस्तान है। ठीक है, तो अगर आप एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो इट मींस यू आर गोइंग टू सपोर्ट पेट्रियार्की। जब पेट्रियार्की होगा, automatically you are, there is a weak enforcement of regulations as well, so there is a bad governance. जब बैड गवर्नेंस होगी तो देयर वुड बी नो रूल ऑफ लॉ। नो रूल ऑफ लॉ मींस कि आप इंडिविजुअल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे, और उसमें देयर इज अ मोर जेंडर डिस्पैरिटी। ठीक है, जो सेमी पेरिफेरल कंट्रीज होते हैं लाइक अ डेवलपिंग कंट्रीज, their situation is not more ideal as a core country, but the situation is not going to get more worse when you compare with the peripheral countries. So basically they are in between core countries and peripheral countries. So yes, you can take example of Pakistan as well. When you're talking of Islamabad, maybe you are going to have a good treatment of genders. When you're talking of FATA, when you're talking of Balochistan, maybe you are going to take situation worse like Afghanistan. So you are going to see mixed situation here like core and peripheral countries. Clear? Thank you very much. Okay, next जो टॉपिक है आपका, जो सेकंड थ्योरी है कैपिटलिज्म में ही, दैट इज अ डिपेंडेंसी थ्योरी। यासर साहब, इसको भी आप एक्सप्लेन। यासर साहब, आपने आइया रखा हुआ है ना? जी जी, यासर साहब आप ऑलरेडी अनम्यूटेड हैं, तो मुझे ये बताइए आपने आइया रखा हुआ है? नहीं सर, मैंने यार नहीं रखा। अच्छा चले, डिपेंडेंसी थ्योरी आती है, क्या होती है? हाँ सर, डिपेंडेंसी थियरी इट वाज प्रपोज्ड बाय इम्यूनल प्रिविलेज, इसी तरह का नाम है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं प्रोनाउंसिएशन में सर। लैटिन अमेरिका के लिए एक यूएन का कमीशन था, उसमें इस थियरी को प्रपोज किया गया था। और इस थियरी के मुताबिक it is the interaction between the developing world and the developed world. Sir, और ये theory, the dependency theories argues that the economic and political arrangements of the global capitalist economy are the root cause of such a disparities between the developing world and the developed world. और वो developing world के लिए third word भी इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है कि जो capitalist world है उसने economic arrangement इसी तरह किया है कि that always exploit the poor nation or the developing or the third world nation. और साथ साथ वो ये भी कहता है जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, ये तो सर रीसेंट स्टडी ये कहते हैं कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक द आईएमएफ, लाइक द वर्ल्ड बैंक, लाइक द एफएटीएफ, they are also serving like the same cause of the capitalist world. तो इसी तरह एक disparities है economic system में वर्ल्ड में। सर this theory deals with such a kind of issues. चले, थैंक यू वेरी मच, शाबाश। सैयद जिशान साहब, मैं आपको भी अनम्यूट कर रहा हूँ, सर मैं थैंक यू सर। सर मैं यासिर की बात बहुत अच्छी उसने बताई है। मैं उसको जो है ना बिल्कुल आसान लफ्जों में इस तरह से बताऊंगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज को आपस में उनको सब्जुगेट इस तरह से करते हैं कि इनडायरेक्ट वे में उनकी सब्जुगेशन हो, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो उन पर डिपेंडेंट हो जाए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज पर, इसको डिपेंडेंसी थ्योरी कहते हैं इन वेरी इजी वर्ड्स। यासिर भाई की बात को मैंने थोड़ा इजी करके बता दिया। हाँ शाबाश, ठीक है, एक्सलेंट, ठीक है। तो बेसिकली डिपेंडेंसी थ्योरी में हमारा जो फोकस होगा वो रिगार्डिंग जेंडर रिलेशंस एंड इनइक्वालिटी है। कि हमने ये तो कह दिया ना कि जैसे हम कहते हैं कि वर्ड 3 में है, कोर कंट्रीज, पेरिफेरल, सेमी पेरिफेरल, बट इट डजंट मीन दैट दे कैन लिव इन एन आइसोलेशन, एज मैन इज अ सोशल एनिमल, दैट यू कैन नॉट फुलफिल योर नीड्स एंड यू आर डिपेंडेंट अपॉन अदर इंडिविजुअल्स। Likewise, one state cannot live in an isolation, and one is dependent upon other states as well. So whenever you are going to come into a relationship with the state, so that relationship is basically one state with a passage of time that is going to depend more on other state as well.
Not necessarily that for economic interest you are dependent. For other relations, you can also come into contact with other states as well. तो ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, ये बेसिकली आपका जो सबऑर्डिनेशन है और डोमिनेशन है, उस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है. ओके, अब एक तो जब हम ये डोमिनेशन और इसकी डोमिनेशन की या जो सबमिशन की हम बात करते हैं, तो उसमें जो नेचर ऑफ अलायंस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. How that relationship is going to be governed. Not necessarily all the time. Whenever you are in a relationship, it results in exploitation. That's not the case. It depends on the situation through which you are going to govern that relationship. So in some cases, it could be beneficiary, but in some cases, it would be very destructive as well. Okay, second thing is important, that what are the economic and political arrangements. ठीक है, कि अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें कि पाकिस्तान डिपेंड करता है यूएसए पे, तो क्या पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है यूएसए पे इन टर्म ऑफ ट्रेड, क्या दैट इज गोइंग टू बी ओवरकम विद द पैसेज ऑफ टाइम? द आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि हम जब एक कंट्री दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है, तो सिचुएशन उस टाइम बेनिफिशियरी होती है when they are on equal terms in terms of technology. It is very important that who is going to reduce cost of production in that relationship. तो क्योंकि जो डिपेंडेंट होगा, ऑब्वियसली नीड्स तो दोनों की होती है ना, एक को एक्सपोर्ट करना होती है, एक को इंपोर्ट करना होती है, व्हाटएवर, लेकिन उसमें वो जो रिलेशनशिप है, अगर उस रिलेशनशिप में टेक्नोलॉजी में अगर कोई एक वीक होगा, तो वो उस रिलेशनशिप में इक्वल बेनिफिशियरी नहीं रहता. द सिचुएशन इज नॉट अ विन विन सिचुएशन. ठीक है, जिसकी बेस पे फिर उसकी जो डिपेंडेंस है, जो वीक है, उसकी डिपेंडेंस जो पावरफुल है या जो डोमिनेटेड है, उस उसकी वीकनेस, जो उसकी जो डिपेंडेंस है, दैट इज गोइंग टू बी हाई विद द पैसेज ऑफ टाइम. ओके, अगर उसकी डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी, तो इट मींस उसका जो ट्रेड सरप्लस है वो नहीं हो पाएगा, और उसकी जो इकोनॉमी है, क्योंकि ट्रेड सरप्लस नहीं होगा तो आपकी जीडीपी नहीं होगी, जीडीपी नहीं होगा तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट स्पेंड ऑन एन इंडिविजुअल वेलफेयर. जब आप इंडिविजुअल वेलफेयर स्पेंड नहीं कर पाएंगे, तो इंडिविजुअल में कि वो जो डिपेंडेंट कंट्री है उस पे बेसिकली जो इंडिविजुअल्स उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, और अगेन यू आर गोइंग टू सपोर्ट अ पैट्रियार्कल थिंकिंग एंड सो ऑन. ठीक है, और वो कंट्री जो कि उस रिलेशनशिप में ज्यादा बेनिफिशियरी है, उसकी क्योंकि ग्रोथ अच्छी होगी, जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल वेलफेयर पे भी स्पेंड करेगा, वो इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देगा. Okay, second जो इसमें चीज important है, that is a political arrangements. Political arrangement means कि when countries they are going to come into a relationship through a trade. ठीक है, अब उसमें जो various institutions है, for example IMF, World Bank, okay, and WTO, World Trade Organization, they play very important role. They act as a, you can say, supervisory institutions. अब ये जो political arrangements है, again that is going to support the dominant country and they are not going to support the weaker country. कि फॉर एग्जांपल अगर हम आईएमएफ की बात करते हैं, तो आईएमएफ की जो कंडीशन है फॉर डेवलप्ड कंट्री और फॉर द डेवलपिंग कंट्री इन टर्म ऑफ टेकिंग अ लोन, दैट इज एंटायरली डिफरेंट. अगर आप डब्ल्यूटीओ की बात करें, तो डब्ल्यूटीओ जो है दैट इज गोइंग टू टॉक ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड. ठीक है, दैट इज गोइंग टू सपोर्ट मोर फ्री ट्रेड. अब फ्री ट्रेड कैसे होगी? यू हैव टू रिड्यूस योर टैरिफ. जब आप टैरिफ कम कर देंगे, तो उसका नुकसान किसको होता है? उसका नुकसान उसको होगा जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है. तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में आप चीजों पे टैरिफ खत्म कर दें कि चीजें चीप आनी चाहिए. कि हम कहते हैं जी कि जब एक चीज चाइना से आपको सस्ती मिल रही है, तो भाई आपको पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने की क्या जरूरत है? चाइना से इंपोर्ट कर लो. अगर आप हर चीज चाइना से इंपोर्ट करेंगे, तो वो चीज सस्ती तो जरूर है, लेकिन यहाँ पे जो लोगों को रोजगार मिल रहा था वो खत्म हो जाएगा. आपकी जो अपनी इंडस्ट्री थी वो भी बैठ जाएगी, उसमें ज्यादा बेटरमेंट नहीं आएगी, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी. सम अदर इश्यूज एज वेल. ओके, तो जब इस तरह के पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स होते हैं, तो उस पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स में जो वीकर है उसको फायदा नहीं होता. जब वीकर को फायदा नहीं होता, तो वीकर की इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास अगेन इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं हो पाएंगी, ड्यू टू इलिटरेसी, ड्यू टू द बैड गवर्नेंस, ड्यू टू नॉन पार्टिसिपेटरी अप्रोच, ड्यू टू मोर अथॉरिटेटिव रोल ऑफ द गवर्नमेंट, एंड ड्यू टू, you can say, lack of enforcement of rule of law and some other factors.
So that's all about this. Okay, so that's the gender issues. Okay, फिर जब हम जेंडर इश्यूज की बात करते हैं तो वो कंट्री जो कि उसमें ज्यादा बेनिफिशियरी है, वहां पे इंडिविजुअल्स का जो लाइफ स्पैन है, दे आर गोइंग टू हैव अ बेटर लाइफ, दे आर गोइंग टू हैव मोर हाइजेनिक कंडीशंस, और जो वुमेन भी होंगी उनके जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होंगी, उनका जो हेल्थ इश्यूज हैं वो भी बेहतर होंगे, एजुकेशनल इश्यूज भी बेहतर उनके नहीं होंगे, बेसिकली बेहतर क्या होने, एजुकेशनल इश्यूज उनके एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, और उनके लिए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा क्रिएट होंगी। और अगर हम बात करें वो कंट्री जो कि उससे डिपेंडेंसी रिलेशनशिप में जो उस पे वीकर है, तो वहां पे हम क्या कहें, जो इंडिविजुअल है दे वुड बी हैविंग ए शॉर्टर लाइफ स्पैन, उनका लाइफ स्पैन भी कम होगा, और ऑटोमेटिकली अगर डिजीजेस की बात करें तो वो भी उनमें बड़ी ज्यादा होंगी, और उनके हेल्थ मसाइल ज्यादा होंगे, एजुकेशनल मसाइल ज्यादा होंगे। वो जो चैप्टर 6 और 7 पढ़ा है वो सारा यहाँ पे फिट कर दें। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस रिलेशनशिप। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी कंफ्यूजन? अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि आज के लेक्चर में ये जो स्लाइड्स में मैंने ज्यादा कंटेंट नहीं रखा, इसका आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? क्योंकि अगर स्लाइड्स में बहुत कुछ हो जाए ना तो फिर भी आप वो लेक्चर में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लेते। आपको होता है कि ये स्लाइड सामने आ रही है, आप उसके ना स्क्रीन शॉट लेते रहते हैं। मुझे था कि जरा आज स्क्रीन शॉट लेके दिखाएं, क्योंकि आज तो इसमें ज्यादा कंटेंट होगा ही नहीं। ओके, चलें, थैंक यू वेरी मच। जी जी इमरान साहब, मैं अब तो मेरा ख्याल स्पीड हमारी ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी सी स्पीड और रिड्यूस कर देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। चले, ओके, नेक्स्ट। अब आ जाते हैं हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है कि जो इनक्वालिटी आपको सोसाइटी में नजर आती है, वो इनक्वालिटी जो है वो बेसिक, या ये जो आप वो उसकी बात कर रहे हैं ना स्लाइड्स की, तो वो जो ग्रुप है वो बेसिकली 267 टू 69 ग्रुप है। ठीक है, तो इसलिए वो आपका नहीं था, इसलिए मैंने वो शेयर नहीं किया। व्हेन आई वुड टीच देम आई वुड डेफिनेटली आई वुड शेयर इन दैट ग्रुप। एनीहो, चलिए थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। जब हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स जो इनइक्वालिटी फेस करते हैं, वो इनइक्वालिटी फेस करते हैं ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ दैट सोसाइटी। ओके, अब फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटी क्या है कि जो हमारी सोसाइटी है, नमाज ब्रेक करनी है, चले फिर कर ले ब्रेक नमाज, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो लेट्स हैव अ प्रेयर ब्रेक। ये प्रेयर ब्रेक नहीं, नहीं 20 मिनट्स की नहीं है, खुदा का खौफ करें, तरावी पढ़नी है आपने, ठीक है। आई थिंक इट वुड बी 5 मिनट और 10 मिनट्स, व्हाट डू यू थिंक? नहीं नहीं 10 मिनट है, कोई नहीं 15 मिनट, मैं तो 5 मिनट कहने लगा था। 10 मिनट ब्रेक। ओके ओके, सी यू आफ्टर द क्लास। अच्छा चले 15 मिनट कर ले, ठीक है। ओके।